Good morning, student. Today, I am teaching you business study for class 11th. Our today's topic is I'll explain you about post office services. So, in my previous video, I told you about postal services like financial facilities under postal certificate, registered post. You can register your post, then you will send parcels, speed post, courier, and other postal services like greeting cards, media post, direct post, international money transfer, passport facilities also, and email post. Then other postal saving schemes are like recurring deposit accounts, national savings certificate, Kisan Vikas Patra, Public Provident Fund, monthly income schemes. Okay. Now let me explain you detail about the monthly schemes through post office provide to the policy holder. Okay. So monthly schemes which is run by the post office provided for the monthly payment of the interest income to the investor. तो जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आपका मंथली इनकम स्कीम का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है. और इसमें जो आप पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट इनकम टू द इन्वेस्टर, तो वो उसमें इंटरेस्ट चार्ज होके इन्वेस्टर्स को दिया जाता है. एनी इंडिविजुअल कैन ओपन द अकाउंट आइदर सिंगल और जॉइंटली, तो कोई भी इंडिविजुअल या जॉइंटली इस अकाउंट को खोल सकते हैं, ठीक है. हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स विच पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स टू द पीपल. तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, तो सेम एज द मंथली इनकम स्कीम. वी हैव बेसिकली 5 types of services through which we get some amount of interest after the maturity period, like monthly income fixed deposit scheme. ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप एक साथ एक लमसम अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं और आफ्टर 10 ईयर यू विल गेट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट ऑफ योर फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, जो कि एज अ पेंशन आपका काम कर सकता है. अनदर वन पोस्ट ऑफिस पेंशन स्कीम्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है. इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.3 है आज की तारीख में. इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है दैट इज अ 5 ईयर. ओके. अगर आप अपनी मेच्योरिटी पीरियड से पहले पैसे को निकालना चाहते हैं मीन्स बिटवीन 2 to 3, देन वट एवर द इंटरेस्ट रेट, इसमें पेनल्टी आपका 2% उसमें से कम कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 7.3% इज द फाइनल इंटरेस्ट रेट. If you are taking before the maturity period between 2 to 3 years, after 2 or 3 year, then 2 or 3% उसमें लेस करके आपको इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा. इसका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, जो मैक्सिमम इसका मेच्योरिटी का जो अमाउंट है जितना आपने पे करना है दैट इज 4,50,000, ठीक है, जिसमें आपको 7.3% मिलेगा. देन पोस्ट ऑफिस में एक सीनियर सिटीजन सेविंग्स है जो कि आपका 50 to 60 ईयर के बीच में आप कर सकते हैं. इसका जो परसेंटेज है 8.7 है, ठीक है. इसका मेच्योरिटी पीरियड भी 5 ईयर है. आप इसको बिफोर मेच्योरिटी पीरियड 3 और 2 ईयर्स में निकालते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट आपका कम करके आपको पे किया जाता है, ठीक है. नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन यू अबाउट द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स which is basically meant for the people, those who are not very financially strong, those who are weaker section of our society. So first of all, as written in your screen, one is Atal Pension Yojana. So in this Yojana, they address the longevity risk among the workers is unorganized sector and to encourage them to voluntary save for their retirement. तो जो moreover जो peoples होते हैं they not works in organized sectors like government sectors, तो ऐसे particular areas में जो people work कर रहे हैं they want some pension after their retirement or after they are not able to do the work. So such types of schemes helps them
in their old age time, in their old age days also. So the government started this scheme for individual in the age group of 18 to 40 years. तो 18 से 40 साल का कोई भी बंदा अटल पेंशन योजना को ले सकता है. The individual is expected to contribute in the scheme until he or she attain the age of 60 year. जब वो 60 ईयर का हो जाता है तो वो इसका कंट्रीब्यूशन उसको मिल जाएगा. द स्कीम्स एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर अवेलिंग ओल्ड एज पेंशन, और ये एक टाइप से ओल्ड एज पेंशन की तरह काम करता है. ठीक है. देन नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना. सो दिस स्कीम ऑफर्स एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी कवर ऑफ 2 लाख. ठीक है. ये एक टाइप से एक इंश्योरेंस का भी काम करता है, as well as it helps you in any of the accidental and disability. It gives you 2 lakh at a premium of 12 rupees per year. आप हर साल का 12 रुपया पे करते हैं और आप कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डिसेबिलिटी होती है तो 2 लाख आपको उसमें कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा. तो एन इंडिविजुअल होल्डिंग अ सेविंग अकाउंट कैन बी इनरोल्ड अंडर दिस स्कीम. तो एक कोई भी एक इंडिविजुअल इस स्कीम के तहत अपने को इनरोल कर सकता है. देन थर्ड इज प्रधानमंत्री जनधन योजना. तो दिस स्कीम ऑफर सेविंग अकाउंट विद नो मिनिमम बैलेंस. ठीक है. ये अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है. इट कंप्लीटेड आई थिंक 2 or 3 बिफोर 2-3 years. सो इन दिस स्कीम the government has given the opportunity to the weakest section of the society. They can open their account with zero balance, and the rupee ATM cum debit card has inbuilt accidental and life cover. इसमें उनको life cover भी मिलता है 1 लाख का and 30,000 respectively. ठीक है. ATMs के थ्रू वो 1 लाख इसमें से निकाल सकते हैं और डेबिट कार्ड से 30,000 की वो पेमेंट कहीं भी कर सकते हैं. So the scheme is suitable for economically weaker sections of our society. Fine. तो basically जो economical weak हैं, जो थोड़ा सा poor हैं, they not have a good amount of their income. So such types of peoples can take the benefit through the प्रधानमंत्री जनधन योजना. Last one is प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. So this is also one of the very much effective and very economical scheme which post office provide with the help of the government to the general people, to the weaker section of a society. So the scheme offers a protection term insurance cover. ये protection भी provide करता है insurance के through over 2 lakh to the dependents of the policy holder. जिसने भी policy खोली हुई है 2 लाख का उस बंदे को benefit मिलता है in the events of his or her death at a premium of rupees 330 per year. तो इसको जो प्रीमियम अमाउंट है वो पर ईयर में 330 रुपीज ही पे. एंड एट द टाइम ऑफ एनी डिसेबिलिटी और एनी टाइप ऑफ एनी डेथ, बीमा योजना है, जीवन लाइफ का योजना है. तो इसमें एट द टाइम ऑफ डेथ वॉट एवर द प्रीमियम ईयरली यू हैव पेड दैट इज फिक्स्ड 330 रुपीज, यू विल गेट 2 लाख एट द as a compensation to your family members. Okay, after your death. So any individual in the age group of 18 to 70 years having a scheme account can opt for this income for the scheme. तो ये जो स्कीम है वो 18 से 70 साल का जो भी बंदा है वो इस स्कीम को ले सकता है. ये एक टाइप से सेविंग अकाउंट का भी काम करता है, जैसे कि हमारा सेविंग अकाउंट काम करता है. ठीक है. जैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस काम करता है और जिस तरह हमारा सेविंग अकाउंट काम करता है कि आप उसमें सेव करते जाओ, और या हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस में कि आप प्रीमियम पे करते रहते हैं. अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड से पहले आपकी डेथ हो जा रही है तो इन दैट कंडीशन यू विल गेट, और डेथ के आप मैच्योरिटी पीरियड के बाद भी इफ़ यू आर अलाइव देन यू विल टेक द अमाउंट एज अ सेविंग, यू विल यूज दैट पर्टिकुलर अमाउंट. ओके. सो ऑल दीज आर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स विच गवर्नमेंट is providing to the weakest sections of our society. Fine. Now, very important thing, that is these schemes helps us to our weakest section of our society so that they can grow, they can survive in the huge and very much expensive world. इस एक्सपेंसिव वर्ल्ड में
वो अपने को सर्वाइव कर सके. दे कैन गिव all the opportunities to their dependent. That's why government has given opportunity to the weaker section also by providing these securities to them. Okay, so these are the services we can say. Fine. Okay, so it is same as the monthly income saving which is called MIS. ठीक है, तो ये जो MIS होती है ये एक टाइप से मंथली इनकम स्कीम है. इसको हम पेंशन स्कीम भी कह सकते हैं. फाइन. इसको इंडिविजुअल और जॉइंटली दोनों इसको खोला जा सकता है. दोनों तरीके से काम करती है. इसका जो मिनिमम है वो 1500 वी हैव टू बी पे. इसका जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है, मैक्सिमम लिमिट इसकी है, इफ सिंगल अकाउंट कोई खोल रहा है तो 4 लाख 4.5 लाख, और मैक्सिमम इसका अगर जॉइंट चल रहा है तो 9 लाख है. ठीक है. इसका जो इंटरेस्ट रेट है MIS का दैट इज 8.40 एंड इट इज मेंट फॉर दोज इन्वेस्टर हु वांट टू इन्वेस्ट अ सम अमाउंट इनिशियली एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन अ मंथली बेसिस फॉर देयर लाइवलीहुड. तो ये बेसिकली उन पीपल्स के लिए रन कर रहा है जो एक साथ फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट में अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और उसका लिटिल बिट जो इंटरेस्ट उसमें अर्न हो रहा है दे विल गेट फॉर देयर डे टू डे लाइफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. MIS meant to provide a source of regular income. ये एक रेगुलर इनकम का भी काम करता है, स्पेशली फॉर द ओल्ड पीपल, दोज हु आर रिटायर्ड, दे नॉट गोइंग फॉर